Namaste to all students. Welcome in social science class. Last class I taught about the indoor games and game that is played indoor and outdoor. Today I am going to start the new topic outdoor games. We know that this is the chapter 8 topic leisure time, and today I am going to teach outdoor games. Just here, indoor games are very good, but we cannot ignore the importance of outdoor games. After spending long hours in classroom, you want to play in fresh air in the open playground. Similarly, the older people also look forward for some outdoor activity. We were studying last day about the indoor game, and we knew the importance of the indoor games and how was the very beneficial for us that game. Nowadays we are living at home and we are doing different type of work inside a home. In that time we have to be recreation, we have to be some active, so we need to do some work and we have to play indoor games. But here we are talking about the outdoor games. We cannot ignore the importance of the outdoor games. But here indoor games was very good, I know. But here we are talking about the outdoor game. It is also very important for our life. Suppose that you in the last session when you were coming to school, in that time you were spending a long hours in the classroom, and you always wanted to play in fresh air in the open playground, in open place. In that time you enjoyed in the open playground. तो इट मीन्स 2-3-4 पीरियड करने के बाद क्लासरूम में तुम बाहर फ्रेश एयर में ओपन ग्राउंड में खेलना पसंद करते हो, खेलना चाहते हो. तो सिमिलरली द older people also forward the some outdoor activity. It supplies fresh air to the lungs, refreshes the mind in natural environment, and keep us body fit. It means if you are playing outdoor games, it supply the fresh air in our lungs, and we feel very refreshed. Our mind become very refreshed in the natural environment. No doubt older people also look forward the outdoor activity. पुराने समय में लोग भी पहले आउटडोर एक्टिविटी करते थे, एंड यह जो एक्टिविटी है ये हम लोगों को एक शरीर को, माइंड को बहुत ही फ्रेश रखता है. नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारे लंग्स में फ्रेश एयर को सप्लाई करता है और हमारे माइंड को फ्रेश रखता है. एवरीवन एंजॉयज फ्रीडम फ्रॉम enclosed space, still air, and cooled environment. Moreover, most outdoor game involve large number of the people and hence develop the quality of team spirit, cooperation, tolerance, and leadership. It means प्रत्येक
यह इंजॉय करते हैं फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, फ्रॉम इनक्लोज स्पेस, जहाँ पे बहुत ही कम जगह है उससे फ्री होकर के, फ्रीडम आज़ाद होकर के इंजॉय करना चाहते हैं। स्टिल हियर मीन्स जो घर में जो एक स्टिल मीन्स बासी या बहुत ही अशुद्ध हवा जो है वह, या कुकुंड इन्वायरमेंट जो एक दूषित या बहुत ही गंदा इन्वायरमेंट है, उससे लोग फ्री होना चाहते हैं। Moreover, most outdoor games involve large number of people and hence develop the quality of team spirit, cooperation, tolerance and leadership. तो हालांकि बहुत सारे आउटडोर गेम्स जो है वो बहुत अधिक संख्याओं में लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक डेवलप द क्वालिटी ऑफ टीम स्पिरिट, यह जो है हमारे टीम स्पिरिट की क्वालिटी को भी डेवलप करता है, विकास करता है। कोऑपरेशन, एक दूसरे में सहायता, टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता, और एक लीडरशिप, इस प्रकार की वह हम लोगों को क्वालिटी डेवलप कराता है। द आउटडोर हियर, डू यू नो, फेयर प्ले इज रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, टीम मेंबर्स, ओपोनेंट्स, रेफरीज एज वेल एज फैंस। फेयर प्ले मीन्स हम लोगों को ईमानदारी, इट मीन्स द फेयर मीन्स विदाउट एनी अनफेयर मीन्स, मतलब कोई बिना बेईमानी का, बहुत ही ईमानदारी से। प्ले इज रिस्पेक्ट फॉर रूल्स मीन्स इसका मतलब हुआ प्ले फेयर मीन्स हो गया जो रूल्स को रिस्पेक्ट करना, टीम के मेंबर्स को रिस्पेक्ट करना, ओपोनेंट, रेफरीज जो है, ओपोनेंट मतलब विरोधी जो है उसको रिस्पेक्ट करना, रेफरी को और फैंस को भी रिस्पेक्ट करना। दैट मीन्स हियर द फेयर प्ले, उसको हम फेयर प्ले कहते हैं। ओके, द आउटडोर sporting activity have a greater mass of appeal as compared to indoor ones. तो आउटडोर स्पोर्टिंग जो खेल होता है वह जो है वह कहीं अधिक मास अपील के, मतलब उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों को, जो इंडोर गेम है उससे ज़्यादा आउटडोर गेम के लोगों को ज़्यादा उसका अपील होता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा उसको लोगों का दिलचस्पी होता है। विदाउट ए डाउट cricket is the most popular game in India. Indians enjoy for formats of games, whether test or one days a match or 2020. The cricket is also here the very interesting and popular game. We also enjoy such type of game, and most of Indians enjoy such type of game. तो इंडियन क्रिकेट जो है बहुत ही पॉपुलर गेम है, यह इसको बहुत सारे लोग यह एंजॉय करते हैं। और यह दूसरे आउटडोर गेम के जो है क्रिकेट जो दूसरे गेम से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वॉच इन स्टेडियम ऑन द टेलीविज़न, थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत सा हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं टेलीविज़न पर, यानी तो स्टेडियम में जा कर के वो देखते हैं। बट नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज़ हॉकी। हमारे देश का सब नेशनल गेम क्या है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। At one time, India was a world champion, and now our hockey players are trying to regain the same position with training and determination. तो एक समय था जब वर्ल्ड चैम्पियन था इंडिया हॉकी में, और अभी जो हॉकी जो प्लेयर्स है वह कोशिश कर रहा है उसको फिर से पाने का, सेम पोजीशन लाने का। ओके, सेम पोजीशन लाने का वो कोशिश कर रहा है, और वह इस ट्रेनिंग और डिटरमाइन के बदौलत यह पोजीशन लाएगा। द अदर पॉपुलर आउटडोर गेम्स आर द फुटबॉल। दूसरा जो आउटडोर गेम है पॉपुलर वो क्या है, फुटबॉल है। ओके, एंड लॉन टेनिस भी है, पोलो, हॉर्स राइडिंग, etc. ऑल दीज आर द आउटडोर गेम दैट इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर
country. Kabaddi and Kho-Kho have been popular in India since olden times, especially in the rural parts. Kabaddi, we are also enjoying in the school. Kabaddi and Kho-Kho both are the very popular in our village, even our village in our India also, that is very popular, and it has been popular from the olden times. हाँ, इन द रूरल पार्ट ऑल्सो, गाँव में भी और बहुत पुराने समय से यह इंडिया में पॉपुलर है. बट इन रिसेंट टाइम कबड्डी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर. लेकिन अभी में कबड्डी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. बोथ द गेम्स आर वेरी गुड एंड फिजिकली फिटनेस, क्विकनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, मेंटल अलर्टनेस एंड टीम स्पिरिट. यह दोनों गेम जो है बहुत ही अच्छा है फिजिकली फिटनेस के लिए, क्विकनेस ऑफ द मूवमेंट, यह जो प्रतिक्षण की जो क्विकनेस है उसमें, मेंटल अलर्टनेस और टीम की स्पिरिचुअलिटी में यह एक बहुत ही अच्छा गेम माना जाता है. ओके, moreover they do not require any expensive equipment and can be played everywhere. It means इसमें कोई भी ऐसा खेल की सामग्री या उपकरण की ज़रूरत नहीं है, महंगे खेल की जो उपकरण की, जिससे ये खेला जा सकता है, कहीं भी ये खेला जा सकता है. ओके, मेनी पीपल enjoy cycling, skating, walking, jogging in parks. Yoga classes are also a great action in park and yoga centers. बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं, स्केटिंग, वॉकिंग, जॉगिंग पार्क में. एंड योगा nowadays also become a very popular here. Yoga become very popular and all people are doing the yoga at his home. Okay, and it also great attraction of the parks and yoga. You can see in the park and yoga center में देख सकते हो बहुत सारे लोग योगा करते हैं. Old as well as the young practice प्राणायाम and the asanas. पुराने और बूढ़े लोग भी और जवान लोग भी, दोनों जो है यह प्राणायाम करते हैं. ब्रीथिंग टेक्निक है, सांस लेना, सांस छोड़ना, अनुलोम विलोम सच टाइप है. हाँ, प्राणायाम इजियर. आसन का जो बॉडी का पोस्चर है वो करना, ताड़ासन होता है, त्रिकोणासन, सच टाइप ऑफ आसन. सम पीपुल ऑल्सो एंजॉय द एक्सरसाइज इन ओपन स्पेस. कुछ लोग जो है वह एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ओपन स्पेस में. हाँ, यह इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं. Kite flying is a popular activity on the Raksha Bandhan, Independence Day and Uttarayan. It required great skill and strategy. All over the world, people enjoy flying kites of different shapes and material. Kite flying, यह पतंग का जो उड़ाना है दैट इज़ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी है. हमारे रक्षाबंधन में होता है, इंडिपेंडेंस डे जब उत्तरायण होती है तब. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड ए गेट स्किल स्ट्रेटेजी. ये बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे स्किल की, कुशलता की और स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है. पीपुल या काइट फलाने, ये उड़ाने में अलग अलग शेप, अलग अलग मटेरियल का वो बनता है. ओके, earlier some games were played only by boys and some by girls. Most boys played cricket or hockey and girls were expected to play खो-खो, बैडमिंटन etc. पहले होता था कुछ गेम होता था सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते, कुछ गेम गर्ल्स ही खेल सकते. बट नाउअडेज दैट इज़ नॉट हियर. अब ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ बॉयज़ प्लेड क्रिकेट. अधिकतर लोग बच्चे खेलते हैं, लड़का खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी. गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू प्ले. ऐसा था तो जो पहले क्रिकेट खेलते थे बॉयज़ एंड हॉकी, और लड़की खेलेगी खो-खो और बैडमिंटन. बट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज. बट अभी का परिस्थिति बदल गया है. गर्ल्स वोमेन आर प्लेड ऑल काइंड ऑफ गेम्स फॉर फन एंड एज प्रोफेशनल लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी etc. लेकिन आजकल जो हो क्या हो गया, यह सिचुएशन बदल गया है. वोमेन खेल रही है, अलग हर प्रकार का खेल खेल रही है मज़ाक के साथ, और
अपना प्रोफेशनल के रूप में भी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेला जा रहा है। मेनी गेम्स आर competed as mixed doubled at international level like lawn tennis। बहुत सारे गेम जो है वह क्या खेले जाते हैं, competed as a मिक्स डबल में मतलब लड़का लड़की एक साथ दोनों मिल करके खेलते हैं, और इंटरनेशनल लेवल जैसे लॉन टेनिस हो गया। ओके, both boys and girls have equal opportunity to participate at national games, Asian games and Commonwealth games, Olympics etc। लड़का लड़की इट मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की समान रूप से एक समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मौका मिलता है भाग लेने के लिए नेशनल गेम में। इवेंट्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक्स गेम में भी दोनों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। मोस्ट पीपल एंजॉय वाचिंग ए क्रिकेट मैच एट ईडन गार्डन, टेनिस मैच एट विंबलडन विथ एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट। बहुत सारे लोग देखते हैं क्रिकेट, देखते हैं मैच देखते हैं ईडन गार्डन में, टेनिस मैच देखते हैं विंबलडन, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ और बहुत ही एक्साइटमेंट होकर के, उत्तेजित होकर के। लेकिन चिल्ड्रेन प्ले विजिट इस जू, सर्कस और वाटर पार्क और फ्लाई काइट्स इन देयर लीजर टाइम। बहुत सारे बच्चे जो है वह कहाँ जाते हैं, जू में जाते हैं, सर्कस, वाटर पार्क, फ्लाई काइट उड़ाने में अपने अपने लीजर टाइम में। यंग और ओल्ड जो हैं, बूढ़े और जो जवान हैं, एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू लीजर टाइम टू रिलैक्स, एंजॉय एंड रिफ्रेश द माइंड। प्रत्येक क्या आगे की तरफ देखते हैं जो कब वो लीजर टाइम आएगा जिससे वो रिलैक्स हो सके, एंजॉय कर सके और फ्रेश एयर उसको माइंड को रिफ्रेश हो सके, अपने माइंड से रिफ्रेश हो सके कोई भी काम करने के बाद। ओके, जस्ट ये स्पेक्टेटर्स चेयरिंग द क्रिकेट मैच में यह जो भी देखने वाले दर्शक हैं क्रिकेट मैच में चेयरिंग कर रहे हैं। डू यू नो रीडिंग इज़ ए वंडरफुल हॉबी, बुक्स entertain and give us information about people, event, places etc। रीडिंग जो है वह एक अच्छा हॉबी है। बुक्स इंटरटेन एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, कोई घटना के बारे में, जगह के बारे में बुक्स ही हमको जानकारी देता है और इंटरटेन भी देता है। तो वी शुड आल्सो enjoy a leisure time as a reading book। Okay, thank you, have a nice day। Just we have to do the next exercise।